اردو صفحہ کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے گھنٹی دبائیے۔ مسٹر تیمور تو بہت اچھے آدمی ہیں، آپ اس کا سر توڑ دیتے۔ جولیا ہنسنے لگی۔ کیوں، کیا میں اس سے کمزور ہوں؟ وہ ان پٹھانوں کی حالت دیکھی تھی؟ آپ نے کانپ کر رہ گئے ہوں گے۔ میں نہیں سمجھ سکتی کہ کیا واقعہ پیش آیا ہے، جولیا نے تشویش آمیز لہجے میں کہا۔ میں اسے ضرور پیٹوں گا۔ کیا آپ مجھے اس کے گھر کا پتہ بتائیں گی؟ جولیا پھر ہنسنے لگی۔ دفتن اکاؤنٹنٹ بگڑ گیا۔ آپ میرا مذاق اڑا رہی ہیں۔ جولیا اس کی بات کا جواب دیے بغیر پارٹیشن سے نکل گئی۔ شاید وہ اس واقعے کی وجہ معلوم کرنا چاہتی تھی۔ اکاؤنٹنٹ بھی پردہ ہٹا کر دروازے میں کھڑا ہو گیا۔ سارے کلرک ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ مینیجر کی کرسی خالی تھی۔ اکاؤنٹنٹ کی نظر تیمور کے کمرے کی طرف اٹھ گئی۔ وہ چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے اپنی پتلون کی جیبیں ٹٹولنے اور لمبے لمبے قدم رکھتا ہوا غسل خانے کی طرف چلا گیا۔ غسل خانہ تیمور کے کمرے کی پشت پر تھا اور دونوں کے درمیان صرف ایک دیوار حائل تھی۔ اس نے غسل خانے کا دروازہ اندر سے بولٹ کر کے شیشوں پر سیاہ پردہ کھینچ دیا، پھر پتلون کی جیب سے ایک چھوٹی سی سیاہ رنگ کی ڈبیا نکال لی جس سے ایک پتلا سا تار منسلک تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے وہ تار ایک تار سے جوڑ دیا جو ایک ننھے سے روشن دان سے نیچے لٹک رہا تھا۔ بادی النظر میں وہ تار ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے مکڑی کے جالے میں کوئی ہلکا سا تنکا پھنس گیا ہو۔ وہ سیاہ رنگ کی ڈبی اس نے اپنے داہنے کان سے لگائی۔ ڈبی دراصل ایک چھوٹے سے مگر طاقتور ڈکٹا فون کا ریسیور تھی۔ دوسری طرف تیمور اس بات سے قطعی بے خبر تھا کہ اس کمرے میں کہیں پر ایک ڈکٹا فون پوشیدہ ہے اور اس وقت اس کی ساری گفتگو غسل خانے میں سنی جا رہی ہے۔ وہ اپنے مینیجر سے کہہ رہا تھا، اس لونڈے کا انتظام ضروری ہے ورنہ سب برباد ہو جائے گا۔ وہ چاروں بری طرح زخمی ہوئے ہیں۔ گاڑی کمپنی کی تھی، لہٰذا پولیس کا ادھر توجہ دینا ضروری ہے۔ دوسری مصیبت، آج کا اخبار تو تم نے پڑھا ہی ہوگا۔ ارشاد کی کہانی کے متعلق کیا خیال ہے؟ وہ میری سمجھ میں تو نہیں آئی، مینیجر بولا۔ اس بات پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ وہ لڑکی جس کے وینٹی بیگ سے سانپ برآمد ہوا تھا ہمارے شو روم سے نکل کر سیدھی ارشاد منزل گئی تھی۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ پولیس اس معاملے میں بھی ہمیں گھیرنے کی کوشش کرے گی۔ اس طرح دو مختلف معاملات میں ہمیں پولیس سے دو چار ہونا پڑے گا۔ خیر، بہرحال، لیکن یہ تو دیکھو کہ طارق کیا کر رہا ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ اس کی وینٹی بیگ میں اسی نے سانپ رکھا ہوگا۔ ایسے حالات پیدا کر کے وہ مجھے بلیک میل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن ارشاد تیمور ایک طویل سانس لے کر بولا، ہاں، اس کا معاملہ بھی غور طلب ہے۔ کیا یہ بھی طارق ہی کی شرارت ہو سکتی ہے؟ کچھ کہا نہیں جا سکتا، یہ معاملہ بہت پیچیدہ ہے۔ فی الحال اسے رہنے ہی دو۔ میں طارق کے لیے کوئی معقول انتظام چاہتا ہوں۔ مجھے صرف 3 دن کی مہلت دیجیے، ان 3 دنوں میں کچھ نہ کچھ ضرور ہو جائے گا، مگر آپ کو تھوڑا صبر سے کام لینا چاہیے تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ شیر کی طرح نڈر اور لومڑی کی طرح چالاک ہے۔ ہوگا، اب تو جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، اس کے لیے کچھ کہنا ہی بیکار ہے۔ کچھ دیر تک خاموشی رہی، پھر تیمور نے کہا، اس نے دھمکی دی ہے کہ اس کے ساتھ ہی دوسرے شکاری بھی فرم سے قطع تعلق کر لیں گے، لہٰذا تمہیں سب سے پہلے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ سارے شکاری کیمپ میں موجود ہیں یا کچھ چلے بھی گئے ہیں۔ اندھیرا پھیل چکا تھا۔ طارق گراؤنڈ ہوٹل سے نکل کر اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھا ہی تھا کہ کسی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ طارق چونک کر مڑا اور اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھنے والا تیمور اینڈ باٹلے کا نیا اکاؤنٹنٹ ہے۔ ہمیں کہیں اطمینان سے بیٹھ کر گفتگو کرنی چاہیے، اکاؤنٹنٹ نے کہا۔ کوئی خاص بات ہے؟ طارق نے پوچھا۔ زندگی اور موت کا معاملہ ہے، اکاؤنٹنٹ نے سنجیدگی سے سر ہلا کر کہا۔ آؤ تو پھر، طارق موٹر سائیکل کی سیٹ سے ہٹتا ہوا بولا۔ اس نے موٹر سائیکل کا سٹینڈ دوبارہ گرا دیا اور اکاؤنٹنٹ کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہوٹل میں داخل ہو کر اسے ایک کیبن میں لے آیا۔ بیٹھ جاؤ، اس نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ اکاؤنٹنٹ نے بیٹھتے ہوئے ایک طویل سانس لی۔ کیوں، کیا بات ہے؟ تم مجھ سے اس لڑکی کو نہیں چھین سکتے؟ اکاؤنٹنٹ ابل پڑا۔ ہرگز نہیں، کبھی نہیں۔ میں نے محض اسی کے لیے وہاں ملازمت کی ہے۔ سال ہا سال سے اسے چھپ چھپ کر دیکھتا رہا ہوں۔ ہرگز نہیں۔ میں نہیں سمجھا تم کیا کہہ رہے ہو؟
वो तुम्हें पसंद करती है? अकाउंटेंट बकता रहा। तुम्हारी शहज़ोरी की कायल है, लेकिन मैं इसका फैसला करना चाहता हूँ कि हम दोनों में से कौन ज़्यादा ताकतवर है। मैं समझा शायद तुम जूलिया के बारे में कह रहे हो। तारिक हंसने लगा। क्या तुम्हें भी उससे मोहब्बत है? अकाउंटेंट ने दर्दनाक लहजे में पूछा। तुम घास खा गए हो क्या? तारिक फिर हंस पड़ा। घास नहीं तो मुझे ऐसा कोई शेर याद नहीं आता जिसमें आशिक ने मोहब्बत में घास भी खाई हो। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। हाँ, अच्छा फर्ज करो अगर मैं इससे मोहब्बत करता हूँ तो तुम मेरा क्या करोगे? तो मैं बिल्कुल खामोश हो जाऊंगा और तुम खुद ब खुद हमेशा हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट जाओगे। यानी मैं क्यों बताऊं? नहीं बताता। बता दूं ताकि तुम होशियार हो जाओ और मेरा काम बिगड़ जाए। जब तुम ही ना रहोगे तो फिर जूलिया कैसे चाहेगी? किसकी कुव्वत बाजू की तारीफ करेगी? क्या बात बनी है? मैं दुनिया का अक्लमंद तरीन आदमी हूँ। वाह, तुम क्या कह रहे हो दोस्त? तारिक आगे झुककर इसकी आंखों में देखता हुआ बोला। अकाउंटेंट इस वक्त हदो दर्जा बेवकूफ नजर आ रहा था। मैं कुछ नहीं कह सकता, कोई बात नहीं। मुझे देखना है कि तुम इससे कितने दिनों तक मोहब्बत करते हो। मुझे इससे कतई दिलचस्पी नहीं। तुम्हें गलत फहमी हुई है। ओह वाकई? अकाउंटेंट मुसरत आमेज लहजे में चीखा। यकीन करो, तारिक उसे गौर से देखता हुआ बोला। अच्छा, तो आज रात तुम्हारे लिए इंतहाई खतरनाक है। तुम मार डाले जाओगे। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? बस किसी तरह मालूम हो गया है। मैंने तैमूर साहब और उनके मैनेजर की गुफ्तगू किसी तरह सुन ली थी। तुम्हारे पीछे बहुतीरे आदमी लगे हुए हैं। मैनेजर ने तैमूर साहब को बताया था कि तुम कई दिनों से कैंप में सोने की बजाय जंगल के एक पोशीदा मुकाम पर सोते हो। मैनेजर को इस जगह का सुराग मिल गया है और आज रात तुम ठीक। हाँ। तारिक चंद लम्हे के लिए खामोशी से उसे देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला। ये लोग तुम्हें कितनी तनख्वाह दे रहे हैं? 150 से ज्यादा। 160 रुपए। अकाउंटेंट ने फखरिया लहजे में कहा। 160 रुपए? छी छी। तारिक ने अफसोस जाहिर किया, फिर आहिस्ता से बोला, भला इतनी सी हकीर रकम जूलिया की मोहब्बत का भार कैसे संभाल सकेगी? वो अपनी मोहब्बत का भार संभाल लेगी। मैं अपनी मोहब्बत का भार संभाल लूंगा। उसे भी तो माकूल तनख्वाह मिलती है। अकाउंटेंट ने संजीदगी से कहा। तुम बुद्धू हो। तारिक मानी खेज अंदाज में मुस्कुराया। लेकिन मैं तुम्हारा बहुत गहरा दोस्त हूँ। लो, फिलहाल ये 200 रुपए रखो। कल शाम जूलिया को किसी शानदार तफरीह गाह में ले जाना। नहीं, मैं नहीं रखता। क्या तुम मुझे बेकारी समझते हो? अकाउंटेंट बुरा मान गया। नहीं, ये बात नहीं है। ये दरअसल इस इत्तला की कीमत है जो तुमने मुझे इस वक्त दे दी, और आइंदा भी तुम्हारे लिए अच्छी आमदनी के इम्कानात मौजूद हैं। यानी तुम चाहते हो कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए इन लोगों की खोज में रहा करूं। तो इनमें तुम्हारा नुकसान ही क्या है? नुकसान तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर इन्हें मालूम हो गया तो ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि तुम वहां से निकाल दिए जाओगे। इस सूरत में जब तक तुम्हें दूसरी नौकरी ना मिले, मुझसे हर माह 200 रुपए लेते रहना। चलो मंजूर है, लेकिन मैं ये सब महज जूलिया के लिए कर रहा हूँ। अगर तुम्हारा इरादा धोखा देने का हो तो मैं इन रुपयों पर लानत भेजता हूँ। नहीं दोस्त, तुम मुतमईन रहो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल मन्नान है। हाँ, अच्छा दोस्त अब्दुल मन्नान, इस इत्तला का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे। तारिक उसे वहीं छोड़कर बाहर निकल गया। जंगल की उजाड़ रात कायनात की रगो पै में सरायत कर गई थी। शायद 1 बजे का वक्त था। तारीकी कुछ और ज्यादा गहरी हो गई थी। मतलब अबर आलूद था, वरना तारों की छांव में देव पैकर और फलक आसा दरख्त इतने मुहिब ना मालूम होते। तारिक खतरे की इत्तला मिल जाने के बावजूद भी वहीं था जहां उसने पिछली 2 रातें गुजारी थी। यहाँ की जमीन मुस्तह थी, जिसके चारों तरफ घनी झाड़ियां थीं। एक जगह बयाल का ढेर था और इस पर एक कंबल बिछा हुआ था। यही इसका बिस्तर था। आज यहाँ तारिक ने आग भी रोशन की थी और वो अपने बिस्तर ही पर मौजूद था, लेकिन सोया नहीं था। अचानक इसने हल्की सी सरसराहट सुनी। चौंक कर उठा। चंद लम्हे आवाज की तरफ कान लगाए रहा। सरसराहट फिर सुनाई दी।
وہ آہستگی سے بستر سے جھاڑیوں میں سرک گیا۔ دوسرے ہی لمحہ میں دو آدمی اپنے ہاتھوں میں بڑے بڑے کلہاڑے پکڑے ہوئے جھاڑیوں سے کھلی جگہ میں نکل آئے۔ طارق کا بستر خالی تھا، ایک طرف الاؤ جل رہا تھا اور اتنی روشنی تھی کہ قریب و جوار کی چیزیں بآسانی نظر آ سکتی تھیں۔ الاؤ کی سرخ روشنی میں ان دونوں کے چہرے حد درجہ بھیانک معلوم ہو رہے تھے۔ اچانک کسی نے مڑ کر ان دونوں پر حملہ کر دیا۔ ان کے ہاتھوں سے کلہاڑے چھوٹ گئے اور وہ دونوں اچھل کر بھاگے۔ دیکھنا، طارق کی آواز اندھیرے میں گونجی، یہ زندہ نہ جانے پائیں۔ کوئی اندھیرے میں گرا، ایک چیخ ابھری اور پھر سناٹا چھا گیا۔ دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازوں سے جنگل گونج رہا تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد سیٹی کی آواز سناٹے میں لہرائی۔ دور سے کسی نے اس کا جواب دیا اور پھر سناٹا طاری ہو گیا۔ ناصر، ناصر، طارق کی آواز اندھیرے میں ابھری۔ طارق، میں ہوں، جہاں ہو وہیں ٹھہرو۔ ناصر جلدی ہی طارق کے پاس پہنچ گیا۔ کیا ہوا؟ طارق نے پوچھا۔ یار کیا بتاؤں، وہ دونوں صاف نکل گئے۔ خیر پرواہ نہ کرو، طارق بولا۔ میں نے انہیں پہچان لیا، وہ ٹونی اور بارکر تھے۔ اگر نکل گئے ہیں تو یہ سمجھ لو کہ اب ہمیں ان کی شکلیں کبھی نہ دکھائی دیں گی۔ میں نے یہ آگ اسی لیے روشن کی تھی کہ حملہ آوروں کی شکلیں دیکھ سکوں۔ آؤ واپس چلیں۔ وہ دونوں پھر وہیں آ گئے جہاں آگ روشن تھی، لیکن وہاں قدم رکھتے ہی طارق کے منہ سے ہلکی سی تخیر آمیز چیخ نکلی۔ وہ بے تحاشا پیال کے ڈھیر پر ٹوٹ پڑا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے پیال اٹھا اٹھا کر ادھر ادھر پھینک رہا تھا۔ جب ساری پیال اپنی جگہ سے ہٹ گئی تو اس کے منہ سے ایک گندی سی گالی نکلی اور وہ بھرائی ہوئی آواز میں دھاڑا، آؤ، چوٹ ہو گئی، کیا ہوا؟ طارق اسے کوئی جواب دیے بغیر پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ ناصر بھی اسی کے ساتھ ہی ساتھ بھاگتا پھر رہا تھا۔ پھر وہ دونوں شکاریوں کے کیمپ تک آئے جو ان کی کمین گاہ سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر تھا۔ یہاں 3 خیمے استاد تھے، لیکن ان پر خاموشی مسلط تھی۔ ان میں سے کسی میں بھی بیداری کے آثار نہیں پائے جاتے تھے۔ آخر تم کیا تلاش کر رہے ہو؟ ناصر نے پوچھا۔ X539، میری ساری محنت برباد ہو گئی، طارق ہانپتا ہوا بولا۔ پھر چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، اچھا، خیر دیکھا جائے گا، میں دیکھوں گا کہ تیمور کتنا چالاک ہے۔ عمران ٹھیک 3 بجے رات کو فلیٹ میں داخل ہوا۔ فلیٹ کا دروازہ اندر سے بند نہیں تھا، کمرے میں روشنی تھی اور محکمہ سراغ رسانی کا سپرنٹینڈنٹ کیپٹن فیاض ایک آرام کرسی پر پڑا سو رہا تھا۔ عمران نے لکڑی کی وہ چھوٹی سی پیٹی میز پر رکھ دی جسے وہ اپنے ساتھ لایا تھا۔ وہ تھوڑی دیر تک کھڑا فیاض کو گھورتا رہا، پھر آگے بڑھ کر اسے جھنجھوڑنے لگا۔ فیاض بیدار ہوتے ہی اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اور فیاض صاحب، یہ کوئی سرائے ہے یا بھٹیار خانہ؟ تم اتنی رات گئے یہاں کیا کر رہے تھے؟ تشریف رکھیے عبد المنان صاحب، فیاض نے بڑے تلخ لہجے میں کہا۔ میں اپنا فرض ادا کرنے پر مجبور ہوں۔ فیاض نے جیب سے ہتھکڑیوں کا جوڑا نکال کر میز پر ڈال دیا۔ کیا مطلب بعد میں پوچھنا، دوستی اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں اپنا فرض ضرور ادا کروں گا۔ فیاض کا لہجہ حد سے زیادہ خشک تھا۔ ابے کچھ بکو گے بھی یا یوں ہی بور کیے جاؤ گے؟ تمہارا وارنٹ ہے، عبد المنان کا وارنٹ، جو تیمور اینڈ باٹلے کے یہاں اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ ہے۔ اس کے خلاف 5000 کے غبن کا الزام ہے۔ تیمور اینڈ باٹلے کے مینیجر نے عبد المنان کی تصویر بھی دی ہے۔ فیاض نے وارنٹ نکال کر عمران کے سامنے رکھ دیا۔ اس پر عمران کا فوٹو بھی چسپا تھا۔ میں سمجھا، تو شاید انہیں میری اصلیت معلوم ہو گئی ہے۔ عمران آہستہ سے بڑبڑایا۔ تو مجھے الو نہیں بنا سکتے، فیاض گرج کر بولا۔ بڑے شرم کی بات ہے، یہی تو میں کہتا تھا کہ آخر تمہارا خرچ کہاں سے چلتا ہے؟ کیا بچاؤ کی صورت نہیں؟ عمران نے بے بسی سے کہا۔ ہرگز نہیں، میں بالکل مجبور ہوں۔ فرض ادا کرنے سے پہلے تمہیں میرا قرض ادا کرنا چاہیے۔ میں بیتو کی باتیں سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ میرا خیال ہے کہ تم چپ چاپ میرے ساتھ چلے چلو، ورنہ بات بڑھ جائے گی۔ تیمور کہہ رہا تھا کہ وہ اخبارات میں تمہارا فوٹو شائع کرائے گا۔ واہ یار، اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے؟ لوگ دیکھیں گے اور کہیں گے یہ شخص صورت سے تو عبد المنان نہیں معلوم ہوتا۔ ویسے فیاض صاحب، میں نے اپنا کھیل اسی وقت ختم کر دیا تھا اور اب تمہاری آنکھیں کھولنے جا رہا ہوں۔ شہر میں پتہ نہیں کیا کیا ہوا کرتا ہے اور تمہارے محکمے کے کانوں پر جو تک نہیں رینگتی۔ عمران نے میز سے لکڑی کی وہ پیٹی اٹھائی جسے وہ اپنے ساتھ لایا تھا۔ یہ 1 فٹ لمبی اور تقریباً
2 इंच चौड़ी थी। ऊंचाई ज्यादा से ज्यादा 6 इंच रही होगी। ये पेटी, इसने कहा, टोक्यो से बजरिया हवाई डाक आई है। इस पर तैमूर एंड बाटले का पता तहरीर है और ये नंबर पता नहीं ये इस चीज का नंबर है या ये पेटी शुमार में इस नंबर की है, X539। अब मैं इसे खोलने जा रहा हूँ। हो सकता है वो गबन किए हुए रुपए इसी में से बरामद हो जाएं। इसने जेब से कलम तराश चाकू निकालकर पेटी की कीलें निकालना शुरू कर दी। फयाज कुछ न बोला, वो खामोशी से इसे देख रहा था। बार बार ऐसे मौके इसे नसीब हुए थे जब वो इमरान पर चढ़ दौड़ता था, लेकिन बाद में उसे खफ्त उठानी पड़ती थी। इमरान खिलाफ आदत इस वक्त बहुत ज्यादा संजीदा था। इसने सारी कीलें निकाल डाली और फिर 2 अदद की खौफनाक किस्म की फनकारों के साथ ढक्कन खुद ब खुद ऊपर उठता चला गया। अरे बाप रे! इमरान उछलकर पीछे हट गया और फयाज ने मेज पर छलांग लगाई। पेटी में स्याह रंग के 2 सांप फन उठाए खड़े थे। खुदा की कसम इमरान, फयाज हाँफता हुआ बोला, तुम देखना अपना हश्र। फयाज प्यारे चोट हो गई। खुदा की कसम, इसे जान पर खेल कर लाया हूँ। कुल्हाड़ों और खौफनाक आदमियों के नरगे से निकाल लाया। अरे तौबा, तौबा के बच्चे, हथकड़ियां लगाऊंगा। तुम समझते हो शायद मैं मजाक कर रहा हूँ, मगर तौबा का बच्चा पहले ही बाहर निकल चुका था। फयाज मेज से छलांग लगाकर इसकी तरफ झपटा, लेकिन इमरान को पा लेना आसान काम तो नहीं था। दूसरी सुबह के अखबारात में इमरान का फोटो शाया हुआ था। इसकी हैसियत इश्तहार की सी थी। तैमूर एंड बाटले की तरफ से मुबलिग 5000 रुपए के इनाम का ऐलान इन लोगों के लिए किया गया था जो इसका पता निशान बता सकें। नाम अब्दुल मनान ही था। इमरान ने इश्तहार को देखा और खुद को सचमुच अब्दुल मनान महसूस करने लगा। पिछली रात वो शुरू ही से तारिक के पीछे लगा रहा था। तारिक सबसे पहले शिकारियों के कैंप में गया था, फिर नासिर को साथ लेकर टहलता हुआ इस मुकाम पर पहुंचा जहां वो शब बिस्तरी किया करता था। वहां पहुंचकर एक बार उसने नासिर से भी पीछा छुड़ाया। इसे शिकारियों के कैंप की तरफ से किसी काम से भेज दिया। फिर इमरान ने इसे एक तरफ जाते देखा था। इमरान सिर्फ तारिक ही की नकलो हरकत की निगरानी कर रहा था, लिहाजा वो भी इसके पीछे चल पड़ा था। बहरहाल एक जगह रुककर तारिक ने कांटेदार झाड़ियों के झुंड से वो पेटी निकाली थी जिसे इमरान ने न जाने क्या समझकर बड़े जोश व खरोश के साथ फयाज के सामने खोलने की कोशिश की थी, और नतीजे के तौर पर इसमें से 2 अदद सांप बरामद हुए थे। तारिक ने इस पेटी को लाकर यहाँ प्याल के ढेर के नीचे छुपा दिया था और खुद इस पर कंबल डालकर लेट गया था। फिर जिस वक्त तारिक पर हमला हुआ, इमरान इस पेटी को प्याल के ढेर के नीचे से निकालकर चुपचाप खिसक गया। तारिक और तैमूर की लड़ाई की वजह इसकी समझ में नहीं आई थी, लेकिन इन सांपों ने इसे बहुत कुछ समझा दिया था। इसे यकीन था कि वो पेटी किसी न किसी तरह तैमूर ही के पास से तारिक तक पहुंची होगी, वरना इसमें जिंदा सांपों की मौजूदगी समझ में नहीं आ सकती। और फिर तारिक ने इस पेटी को बहुत एहतियात से एक जगह छुपा रखा था, और फिर शायद इसे अपने बिस्तर के नीचे मुंतकिल करने ही के लिए इसने नासिर को भी टाल दिया था। इस पेटी का राज इमरान इसके मुतल्लिक घंटों गौर करता रहा। वो इस वक्त शहर के एक गैर मारूफ से होटल के एक कमरे में मुकीम था। थोड़ी सी तब्दीली अपनी हियत में भी कर ली थी। सर के बालों के उलटने का अंदाज बदल दिया था और सूट उतार कर सिर्फ पतलून और जैकेट पर इक्तफा की थी। आंखों पर बारीक शीशों की ऐनक थी। मसनूई मूछें भी इस्तेमाल करनी पड़ी थी। हालांकि इसे इस बहरूपीपन से सख्त नफरत थी। इस वक्त वो करता भी क्या? वो जानता था कि फयाज ने सब कुछ महज इसलिए किया कि वो इसे सारे हालात से बाखबर रखे, लेकिन ये भी हो सकता था कि वो अपनी धमकी को अमली जामा पहना देता, क्योंकि फिलहाल इमरान के खिलाफ इसके पास काफी मवाद मौजूद था। और फिर ये तो बात की बात होती कि असलियत क्या थी। इमरान ठीक 8 बजे रात को होटल से निकलकर दौलतपुर जाने वाली बस पर बैठ गया। इसी बस के जरिए वो 10 मील का रास्ता तय करके शिकारियों के कैंप तक पहुंच सकता था। जब तक बस शहर से बाहर नहीं निकल आई, वो बहुत ज्यादा मोहतात रहा। वो जानता था कि इसकी तलाश में सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही तरह के लोग होंगे। 10 मील की मुसाफिर तय करने के बाद वो बस से उतर गया। अब उसे घने जंगल में तकरीबन 1.5 मील पैदल चलना था। कैंप में पहुंचकर वो बेधड़क एक खैमे में घुस गया। यहाँ 4 आदमी अपने बिस्तरों पर पड़े गप्पे मार रहे थे। इमरान को देखकर वो उठ बैठे। नासिर भाई कहाँ हैं?
इमरान ने इंतहाई बरखुरदाराना अंदाज में पूछा। बराबर वाले टैंक में है, एक ने जवाब दिया, लेकिन वो इमरान को शुबह की नज़र से देख रहा था। इस वक्त इमरान की आंखों पर तारीक शीशों वाली ऐनक नहीं थी। इमरान उल्टे पांव इस खैमे से निकलकर बराबर वाले खैमे में दाखिल हो गया। यहाँ नासिर मौजूद था, इसके अलावा 2 आदमी और भी थे। नासिर भाई, इमरान ने इसे मुखातिब किया और नासिर उछलकर खड़ा हो गया। तुम कौन हो? मैं उल्लू हूँ, इमरान ने बड़ी सादगी से जवाब दिया। क्या मतलब? उल्लू का मतलब उल्लू ही होता है नासिर भाई, इमरान ने जवाब दिया। अचानक नासिर उस पर टूट पड़ा। मैं अब्दुल मन्नान हूँ प्यारे भाई, इमरान उसे रोकता हुआ आहिस्ता से बोला। ओह, नासिर पीछे हट गया। चंद लम्हे इसे गौर से देखता रहा, फिर उसका हाथ पकड़कर खैमे से बाहर निकल आया। दोनों खामोशी से चलते रहे। जब खैमे काफी पीछे रह गए तो नासिर ने एक जगह रुक कर कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तारिक से मिलना चाहता हूँ। क्यों? ये तो सिर्फ मैं तारिक ही को बता सकता हूँ, इमरान बोला। मैं नहीं जानता कि तारिक कहाँ है। तब मेरा बेड़ा गर्क हो गया। इमरान ने ठंडी सांस लेकर कहा, हाँ मैंने आज अखबार में देखा था, नासिर ने कहा, लेकिन तुमने भेस बड़े कमाल का बदला है। अरे यार, मैं क्या जानूं भेस वेस, ये तो मेरे एक दोस्त की कारीगरी है जो फिल्म कंपनी में काम करता है। मगर ये बताओ कि तुम मुझे कैसे पहचानते हो? ये सब कुछ मैं तारिक के सामने ही बताऊंगा, नहीं तुम मुझे बताओगे, वरना यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकते। यार ये तो तुमने बड़ी बैडहब बात कही। अच्छा चलो नहीं बताता, जो करना है कर लो। तुम्हें गला घोंट कर मार डालूंगा। मार भी डालो यार, इससे तो यही बेहतर है, वरना अगर पकड़ा गया तो 5,000 रुपए कहाँ से पैदा करूंगा। इन लोगों को शायद मालूम हो गया है कि मैंने तारिक के लिए कुछ मालूमात फराहम की हैं, इसलिए मुझ पर यह मुसीबत नाजिल हुई है। तुम मुझे कैसे जानते हो? मेरे सवाल का जवाब दो। अच्छा तुम ना बताओ तारिक का पता, मैं जा रहा हूँ, इमरान ने बड़ी सादगी से कहा। तुम नहीं जा सकते, मुझे कौन रोकेगा? इमरान ने आहिस्ता से कहा। तुम नहीं जा सकते। अच्छा तो रोक लो। नहीं यूं नहीं, इमरान ने संजीदगी से कहा। मैं ज्यादा से ज्यादा 15 गज के अंदर ही अंदर रहूंगा। तुम मुझे पकड़ लो, अगर मेरे जिस्म में भी हाथ लगा सको तो अपना नाम बदल दूंगा। चलो पकड़ो। ये कहकर इमरान ने नासिर के पुरस्कार एक चपट रसीद कर दी। नासिर झलाकर इस पर टूट पड़ा। वो दोनों खुले आसमान के नीचे थे और तारों की छांव में एक दूसरे को बखूबी देख सकते थे। इमरान गोया हवा में उड़ रहा था। अपने वादे के मुतालिक वो नासिर के करीब ही करीब रहा, लेकिन वो कुछ इस अंदाज में उछल कूद रहा था कि नासिर उसे छू भी ना सका। ये रहा, ये आया, ये गया, ये पड़ी चपट। इमरान ने फिर इसके सर पर चपट रसीद की और मतवातर बकवास करता रहा। ये आया, ये गया, ये रहा, ये लो चपट। जरा सी देर में 10-15 चपटें नासिर के सर पर पड़ गईं, लेकिन वो इसे ना पकड़ सका। बस करो, खत्म करो, नासिर हाँफता हुआ बोला। नहीं सुनते तुम सुअर के बच्चे, तुम मुझे तारिक के पास ले चलो, इमरान ने बगैर रुके कहा, वरना इसी तरह चपटें मार मार कर तुम्हें खत्म कर दूंगा। ले चलूंगा, नासिर ने हाँफते हुए कहा। आज नासिर ने दूसरी जगह ठिकाना बनाया था। ये एक गार सा था और इसके ऊपर कई दरख्तों की घनी शाखें झुकी हुई थी। अंदर इतनी जगह थी कि 3-4 आदमी बासानी रात बसर कर सकते थे। तारिक करीब 3 या 4 मिनट से इमरान को घूर रहा था। इमरान इस तरह सर झुकाए बैठा था जैसे कोई फिक्रमंद बाप अपने बच्चों के दरमियान बैठा हो, इनके मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा हो। नासिर बाहर निकलने के रास्ते के सिरे पर खड़ा था। दफतन तारिक बोला, पहले मैं तुम्हें बेवकूफ़ समझता था, लेकिन अब मैं तुम्हारी तरफ से मुतमईन नहीं हूँ, और मेरी बेइत्मीनानी का मतलब तो तुम समझते ही होगे। मुझे बताओ कि तुमने नासिर को कैसे पहचान लिया था? तुम इसे क्या जानो? मुझे जूलिया ने बताया था कि नासिर तुम्हारा गहरा दोस्त है। बस इतना ही है ना? तुमने ये कैसे जाना कि यही नासिर है? इसलिए कि इनकी नाक काफ़ी लंबी है और नाक के सुराख बहुत बड़े बड़े हैं। यानी नाक वाला हर आदमी मुझे नासिर मालूम होता है। मेरा वक्त ना बर्बाद करो, तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकते और तुम मुझे यूं ही उल्लू बनाते चले जाओगे। तारिक साहब, तुमने मेरा कैरियर बर्बाद कर दिया। मैं चोरों की तरह मुंह छुपाए फिर रहा हूँ। तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? तारिक ने सख्त लहजे में पूछा। अल्लाह मियाँ ने भेजा है। अब कहो, क्या तुम ये समझते हो कि यहाँ से जिंदा निकल सकोगे? अच्छा जी,
इमरान नाक चढ़ा कर बोला, क्या तुम्हारा दिल भी चपटें खाने को चाहता है? तारिक मुसल्लमा, मैं आदमी नहीं बल्कि भूत हूँ। मेरे जानने वाले मुझे इसी नाम से याद करते हैं। ये गार तुम दोनों का मकबरा बन जाएगा और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि अपने दोनों हाथों के अलावा और कुछ नहीं इस्तेमाल करूँगा। तारिक शदीद गुस्से के बावजूद भी हंस पड़ा। इससे अपनी ताकत पर बड़ा घुमंड था। इसे इमरान की ये बात ऐसी लगी जैसे कोई मच्छर किसी हाथी को चैलेंज कर रहा हो। तुम हंस रहे हो तारिक, इमरान बोला, लेकिन मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। मुझे आज ही रात को 5,000 रुपए मुहैया करने हैं और इसके लिए मैं तैमूर ही की तिजोरी तोड़ने का इरादा रखता हूँ। वो भी क्या याद करेगा कि किसी गरीब को सताया था। तुमने अभी तक मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तुम नासिर को कैसे पहचान गए थे? ला हौला वला कुव्वत, फिर वही नासिर। अच्छा, मैं कसम खाता हूँ कि मैंने नासिर को कतई नहीं पहचाना था। पहले एक दूसरे टेंट में जा घुसा था। वहाँ मालूम हुआ कि नासिर बराबर वाले टेंट में है। दूसरे टेंट में पहुंचकर मैंने सिर्फ नासिर का नाम लिया था। इसकी तरफ देखकर खास तौर पर इसी को मुखातिब नहीं किया था। ये हजरत अपना नाम सुनते ही उछल पड़े और मैं समझ गया कि नासिर यही है। मैं अब भी मुतमईन नहीं हो सका। तारिक ने गर्दन झटक कर कहा, तब फिर एक ही सूरत रह जाती है। इमरान ने ठंडी सांस लेकर मायूसाना अंदाज में कहा, वो ये कि हम दोनों सर लड़ाएं। अगर मेरा सर फट जाए तो मैं झूठा, अगर तुम्हारा सर फट जाए तो हम दोनों उल्लू के पट्टे। तारिक फिर खामोश होकर उसे घूरने लगा। तुम मेरे पास क्यों आए हो? उसने थोड़ी देर बाद पूछा, महज ये मालूम करने के लिए कि तुम मुझे तैमूर के घर का नक्शा समझा सकोगे या नहीं। इतना तो मुझे मालूम है कि इसकी तिजोरी इसकी ख्वाबगाह में ठीक इसके सरहाने रहती है। तो तुम सचमुच उसकी तिजोरी तोड़ोगे? तारिक, मैं झूठ बहुत कम बोलता हूँ। मैं तुम्हें इसकी राय ना दूंगा कि तुम उसकी तिजोरी में हाथ भी लगाओ। मैं राय लेने नहीं आया तारिक साहिब, इमरान ने नाखुशगवार लहजे में कहा। मेरा नाम अब्दुल मन्नान है। जो कुछ सोचता हूँ कर डालता हूँ। वैसे मैंने अभी तक शादी करने के मुतल्लिक कुछ नहीं सोचा। मेरी बात तो सुनो। तुम्हें सिर्फ 5,000 रुपए चाहिए है ना? वो मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम मुझे 5,000 रुपए दोगे? इमरान ने मुज़ाहका उड़ाने वाले अंदाज में कहकहा लगाकर कहा, यकीनन दे सकता हूँ। मेरे लिए ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, इसीलिए गारों और झाड़ियों में छुपते फिर रहे हो। इमरान हंस पड़ा और तारिक को एक बार फिर गुस्सा आ गया, लेकिन वो खामोशी से अपनी जगह पर बैठा रहा। इसकी तेजी और उकाबी नजरें इमरान को टटोल रही थी। मैं नहीं समझ सकता कि तुम क्या वाला हो, इसने कुछ देर बाद कहा। ना समझो तो बेहतर है, इमरान लापरवाही से बोला। ना जाने कितने ही हसरत लिए हुए दुनिया से चले गए। समझौते की बात करो और मुझे अपने मुतल्लिक बताओ। तारिक ने नरम लहजे में कहा, हम दोनों को चाहिए कि एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। इसके बगैर हम एक दूसरे के करीब नहीं हो सकते। इमरान उसे इस अंदाज में देखने लगा जैसे वो तारिक के इन जुमलों में सदाकत तलाश कर रहा हो। लेकिन अगर तुमने इसके बावजूद भी मुझे धोखा दिया तो मैं किससे फरियाद करूंगा? इसने थोड़ी देर बाद कहा। मैं धोखा किस तरह दूंगा? यही कि अगर तुमने मेरे हालात से पुलिस को बाखबर कर दिया तो। तारिक हंसने लगा, फिर बोला, भला मुझे पुलिस से क्या सरोकार? मेरा अपना पेशा भी कानून की नज़र में बाइज्जत तो नहीं। तुम्हारा पेशा? इमरान ने हैरत से कहा। मैं नहीं समझा। हाँ, पुलिस मेरी दोस्त नहीं हो सकती। यार, जब तुम खुद भी नहीं खुलते तो मुझे पागल कुत्ते ने काटा है। मैं डाके डालता हूँ, अब समझे? समझ गया। और मैं भी डाके तो खैर नहीं डालता, लेकिन तिजोरी तोड़ने में अपना जवाब नहीं रखता। और हाथ की सवाई ऐसी के दिन दहाड़े बीच बाजार ही हाथी गायब कर दूं और किसी को खबर तक ना हो। तारिक आंखें फाड़ कर बोला, लेकिन इसके लहजे में अभी तक बेयकीनी मुतशह हो रही थी। हाँ दोस्त, यही बात है। मुझे यकीन कैसे आए? यकीन? अच्छा तो सुनो। जिस वक्त नासिर पर चपटें पड़ रही थीं, इसी वक्त इसके कोट की अंदरूनी जेब से इसका पर्स निकलकर मेरी जेब में आ गया था। नासिर बौखलाकर अपनी जेब में टिटोलने लगा और इसके मुंह से एक हल्की सी तहय्युरामेज़ आवाज निकली, घबराओ नहीं, अपना पर्स संभालो। इमरान ने जेब से पर्स निकालकर नासिर के आगे फेंक दिया। वाह यार, तारिक ने तहसीन आमेज अंदाज में कहा। यही नहीं, अच्छा तुम बताओ, क्या मैंने अभी तक तुम्हारे जिस्म को हाथ लगाया है?
یاد کر کے بتاؤ۔ نہیں تو کیوں؟ تمہارا پرس میرے پاس کیسے؟ تمہارا پرس بھی میرے پاس ہے۔ کیا؟ طارق اپنی جیبیں ٹٹولنے لگا، لیکن اتنی دیر میں اس کا پرس بھی اس کے سامنے پھینک دیا گیا۔ لائک، کامنٹ، شیئر، پریس دی بیل آئکن۔